آگے بڑھے اب آپ کو بتائیں بجلی گیس نہ پانی کراچی کے ہر گھر کی کہانی۔ گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان، لیاری، کورنگی، لانڈی، علاوالہ ٹاؤن اور رنگی سمیت مختلف علاقے بھی متاثر ہیں۔ موسیٰ کالونی کے مکین 9 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ گئے۔ گیس کی بندش نے شہریوں کا جینا بھی محال کر دیا۔ پسماندہ کے ساتھ پوش علاقوں میں بھی چولہے ٹھنڈے، شہری پھٹ پڑے، بولے بجلی جاتے ہی پانی بھی بند ہو جاتا ہے۔ بھاری بلوں نے کمر توڑ دی، کہیں بھی شنوائی نہیں ہوتی۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بجلی گیس کے مسائل شہریوں کی زندگی کا روک بن گئے۔ لیاری، کورنگی، لانڈی، اللہ والا ٹاؤن، اورنگی سمیت مختلف علاقے متاثر۔ شہر میں بجلی کی 10 گھنٹوں اور گیس کی 8 گھنٹوں کی بندش جاری۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق کراچی میں کہیں بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جا رہی۔ بجلی چوری والے علاقوں میں وہاں کی صورتحال کے مطابق لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے۔ شہر میں بجلی کے ساتھ گیس کی قلت بھی بڑا مسئلہ ہے۔ مکین کہتے ہیں بھاری بھرکم بلوں نے کمر توڑ دی۔ گیس نہ ملنے کی صورت میں لکڑیوں پر کھانا پکانا پڑتا ہے۔ کورنگی جیسے ایریا اللہ والا ٹاؤن میں رہتے ہیں ہم، اور وہاں پہ گیس کی بہت پرابلم ہے۔ دوپہر کو ہم لوگ کمپنی سے گھر جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے، تو مطلب کھانا تیار نہیں ہوتا۔ لائٹ 1 گھنٹہ چلتی ہے، 3 گھنٹے چلی جاتی ہے، اور بل اتنے زیادہ آتے ہیں کہ بس سمجھ سے باہر ہے۔ گیس کا بڑے بھائی یہ مسئلہ ہے کہ پریشر آتا بھی ہے، کبھی کبھار نہیں آتا۔ وہ بھی صبح تو ہوتا ہی نہیں، ناشتہ تو ہم کرتے ہی نہیں، روز ہوٹل پہ کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے۔ ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق مختلف گیس فیلڈ سے حاصل ہونے والی گیس کے پریشر میں کمی کا سامنا ہے۔ صارفین کی سہولت کے لیے روزانہ کی بنیادوں پر لائن پیک کو بہتر بنایا جاتا ہے۔ کیمرامین شاہزیب کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ بجلی کے ساتھ گیس کی بندش، دوہری اذیت سے شہریوں کا جینا دوبھر۔ ایف بی ایریا موسیٰ کالونی کے مکین گیس لوڈ شیڈنگ سے عاجز آ گئے۔ تفصیلات بسیم افتخار کی اس رپورٹ میں۔ گیس مسائل اور ہوش ربا بل موسیٰ کالونی کے مکینوں کی تقدیر بن گئے۔ کہتے ہیں گیس پریشر میں کمی اور بندش کا سامنا ہوتا ہے۔ سوئی صدرن کے شکایتی مراکز پر کوئی سنوائی نہیں ہوتی۔ ایل پی جی سلنڈر استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ گیس کے ہوش ربا بلوں میں ٹیکسوں کی بھرمار نے کمر توڑ دی ہے۔ غریب محلے والوں کو گیس کم ملتی ہے، اور جو ڈیفینس ایریے میں ادھر ادھر جو رہتے ہیں، جو پمپ والے، ان کو زیادہ گیس ملتی ہے۔ علاقہ مکینوں کا یہی کہنا ہے، ان لوگوں نے بولا ہے بھائی ہمارے بل کے گھر کے جو جتنے بل آتے ہیں ان کو کم کیا جائے، اتنا خون ہمارا نہ چوسا جائے، کیونکہ بل کی حد کی کوئی زیادہ ہی ہو گئی ہے۔ ادھر جاتے ہیں، ادھر کمپنی میں جاتے ہیں، پکار کے آتے ہیں، کوئی بھی نہیں سنتا۔ ہم تو ہمارے کو تو سلنڈر جلانے کی بھی نہیں ہے کہ سلنڈر اتنا مہنگا کدھر سے جلائیں۔ علاقہ مکینوں کا حکومت سے مطالبہ ہے کہ گیس مسائل کو حل کرنے کے لیے جامع اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی مشکلات حل ہو سکیں۔ کیمرامین حسنین جعفری کے ساتھ بسیم افتخار، سٹی 21۔ کمشنر کراچی منافع خوروں کو لگام ڈالنے میں ناکام۔ پھل اور سبزیاں سرکاری نرخنامے سے مہنگی فروخت ہونے لگے۔ تفصیلات کاوش میمن کی اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں مہنگائی کا راج، پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ گولڈن سیب کی سرکاری قیمت 216 روپے لیکن 300 روپے کلو پر فروخت کیا جانے لگا۔ سبز ایرانی گولڈن 288 کے بجائے 400 روپے کلو میں بیچا جا رہا ہے۔ کیلا سرکاری قیمت 97 کے بجائے 150 روپے درجن دستیاب۔ انگور 311 کے بجائے 550 روپے کلو میں فروخت۔ سبزیوں کی قیمتیں بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو گئیں۔ پیاز 92 کے بجائے 120 روپے کلو میں بیچی جا رہی ہے۔ لیمو 633 کے بجائے 800 روپے کلو اور ادرک سرکاری قیمت سے 160 روپے مہنگی فروخت 600 روپے کلو پر پہنچ گئی۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی نے جینا دشوار کر دیا۔ حکومت مہنگائی میں کمی کے دعوے کر رہی ہے مگر غریب کی دسترس سے ہر چیز باہر ہوتی جا رہی ہے۔ اپیل کرتی ہوں کہ دیکھیں ان چیزوں کی طرف جائزہ لیں، لیکن ریٹس بڑھ رہے ہیں، لیکن وہ جو ریٹس ہیں اور کوالٹیز وغیرہ ہے نا وہ سب ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ سبزیاں 100 سے سڑی سبزی 100 سے کم کی ہے ہی نہیں، سمجھ آئیے۔ آپ یہ ایک کام کریں، تھوڑا سا ریلیف دلوائیں۔ جب بھی کوئی نئی حکومت آتی ہے تو ہم یہی سوچتے ہیں کہ مہنگائی میں کچھ کمی ہوگی، اور لیکن مہنگائی میں کچھ کمی نہیں ہوتی ہے۔ وہی پھل فروٹ، گوشت، سبزی، دالیں سب مہنگی ہیں۔ کمشنر کراچی حسن نقوی نے انتظامیہ کو سرکاری نرخوں پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت تو کر دی ہے لیکن اس پر تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ کیمرامین واحد خان کے ساتھ کاوش میمن، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کراچی میں بڑھتے بلدیاتی مسائل انتظامیہ کی کارکردگی کا منہ چڑھانے لگے۔ سندھ اسمبلی کے سامنے نالا کچرے سے بھر گیا۔ کورنگی بلال کالونی کے برساتی نالے کی حفاظتی دیوار 1.5 سال سے غائب ہے۔ بلدیہ ٹاؤن کے نالوں کی حالت بھی ابتر ہے۔ علاقہ مکین بدبو کے ماحول میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ شہریوں کا اعلیٰ حکام سے مسائل حل کرنے کا مطالبہ۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔
पलते गटर, बरसाती नालों से बहता पानी और गलियों में कचरे के अंबार, यह है कराची के वो मसाइल जिन्हें कोई हल करने को तैयार नहीं। सिंध असेंबली के सामने नाला कचरे से भर गया। बारिश के दौरान नाले के ओवरफ्लो होने का खदशा है। जमात इस्लामी कराची में बुनियादी सहूलियात की अदम फराहमी पर सीखपा मोहनम जफर ने एहतजाज के लिए सड़कों पर आने की धमकी दे दी कि इलेक्ट्रिक का लाइसेंस मनसूख करने का भी मुतालबा दोहराया। बोले शहर में 18 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिल पूरे आ रहे हैं। शहर की सड़कें भी खस्ताहाल हैं, शहरियों को पानी मिल रहा है ना ही गैस। मोहनम जफर का कराची में जराइम बढ़ने का भी दावा। तफसीलात नुमान गुल की इस रिपोर्ट में। शहर कायद की अबतर सूरत हाल, जमात इस्लामी दमादम मस्त कलंदर के लिए तैयार। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर बोले, वजीर आला और वजीर बल्दियात शहर की हालत से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जमहूरियत का राग अलापने वाले जमहूरियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। लिहाजा जिम्मेदारी भी उन लोगों की बनती है कि जिन्होंने इन मुस्तरद शुदा लोगों को, उन लोगों को कि जो जमहूरियत की माला जपते हैं लेकिन जमहूरियत पर शबखून मारते हैं और फॉर्म 47 की शक्ल में मुसल्लत कर दिए गए हैं। आज अगर ये शहर यहाँ तक पहुँचा है, ये फॉर्म 11-12 की पैदावार, फॉर्म 45-47 का धंधा, जमहूरियत पर डाका डालो और फिर ये कहा जाए कि हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है मामला से। मुनीम जफर का कहना था कि शहर की सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। हब डैम में पानी भर जाने के बावजूद डिस्ट्रिक्ट वेस्ट पानी से महरूम है। जो सूरत-ए-हाल शहर की सड़कों की है, जो अंडरपासेस की है, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। पूरा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट किमाड़ी, बल्दिया टाउन, किमाड़ी, औरंगी टाउन, मंगो पीर, यहाँ के लोगों के लिए पानी मैसर नहीं है। ये कैसा हब डैम है? आपकी कारकर्दगी क्या है कि डैम ओवरफ्लो हो जाए लेकिन घरों में पानी नहीं आता। अमीर जमात इस्लामी कराची ने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा कि वो मायूस ना हो, जमात इस्लामी का साथ देकर कुव्वत बने। काबिज हुक्मरानों के खिलाफ जमात इस्लामी आवाज बुलंद करती रहेगी। कैमरामैन शकील खान के साथ सैयद नौमान गुल, सिटी 21। किसानों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां। DHA फेज 2 एक्सटेंशन में गैस चोरी करने पर होटल मालिक गिरफ्तार। चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान भी जब्त। तर्जमान के मुताबिक स्विस सदरन टीम ने DHA फेज 2 एक्सटेंशन में वाक़ अब्दुल्ला शाह जी होटल पर छापा मारा। होटल मालिक रोला आगा कंपनी की मेन लाइन से बराह रास्त गैस चोरी कर रहा था। छापामार टीम ने मुलसिम रोला आगा को गिरफ्तार करके चोरी में इस्तेमाल होने वाला सामान तहवील में ले लिया। चोरी शुदा गैस पर लोड के हिसाब से जुर्माना भी आयद किया जाएगा। शहर कायद में मंकी पॉक्स का खतरा मंडलाने लगा। एक ही दिन में बैरून मुल्क से आने वाले 3 मुसाफिरों में मंकी पॉक्स में मुब्तला होने का खदशा। मुसाफिरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। एक ही दिन में मंकी पॉक्स के 3 मुश्तबा केस सामने आ गए। जद्दा और दुबई से आने वाले मुसाफिरों में मंकी पॉक्स की अलामत पाई गई। मुश्तबा मुसाफिरों में 2 मर्द और 1 खातून शामिल। जद्दा से आने वाली 32 साला खातून में मंकी पॉक्स की अलामत पाई गई। 18 साला नौजवान मंकी पॉक्स की अलामत के साथ दुबई से कराची पहुंचा है। 42 साला मुसाफिर सऊदी एयर की परवाज SV 708 के जरिए जद्दा से कराची आया। तीनों मरीजों को इन्फेक्शन डिजीज सेंटर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। टेस्ट रिपोर्ट आने तक मुसाफिरों को अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं, आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में कमी। ताजरों ने हुकूमत से बड़ा रिलीफ मांग लिया। जनरल सेक्रेटरी ली मार्केट ताजर इत्तेहाद अब्दुल्ला यूसुफ सही बोले, हुकूमत पेट्रोल की कीमत 230 रुपये लीटर मुकर्रर करे। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखें। कराची के ताजिरों ने पेट्रोल मजीद सस्ता करने का मुतालबा कर दिया। ली मार्केट ताजिर इत्तेहाद के जनरल सेक्रेटरी अब्दुल्ला यूसुफ जई ने कहा कि पेट्रोल फी लीटर 230 रुपए होना चाहिए। 4-5 रुपए कमी से महंगाई पर फर्क नहीं पड़ेगा। अब्दुल्ला यूसुफ जई बोले, महंगाई ने आवाम को जहनी मरीज बना दिया है, बिजली के नर्ख भी कम होने चाहिए। महंगाई इतनी ऊपर चली गई कि गरीब आदमी परेशान है। उस दिन कौमी असम्बली में ये रिपोर्ट पेश किया गया कि 8 करोड़ पाकिस्तान में लोग जो है वो नफ्सियाती मरीज बन चुके हैं, जहनी मरीज बन चुके हैं। ये किस वजह से? ये महंगाई की वजह से।
तो खुदा हम अपील करते हैं हुकूमत वक्त से कि आप हालात को भी कंट्रोल करें और आप महंगाई को कंट्रोल करें। इंटरनेशनल मार्केट में खाम तेल की कीमत अप्रैल 2024 में $90 फी बैरल रही, जो कि अब सितंबर में कम होकर कमोबेश $70 फी बैरल हो गई है, जो कि गुज़िश्ता 6 माह की कम तरीन कीमत है। कैमरामैन अब्दुल वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। शहर सूद में 2% कमी, जख्मों पर नमक छिड़ने के मुतरादिफ करार। ऑल कराची ताजर इत्तेहाद ने शहर सूद में 2% कमी को मुस्तरद कर दिया। अतीक मीर का कहना है कि सिंगल डिजिट में लाना होगा। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। शरह सूद में 2% कमी नामंजूर, फेडरेशन चैम्बर के बाद ताजिरों ने भी मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर का कहना है कि शरह सूद में 2% कमी जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। महंगाई के बाइस कारोबार धंस गया, 2% की कमी कोई रियायत नहीं। देखिए, ये कमी नहीं है, बल्कि इस महंगाई और कारोबारी तबाही के मारे लोगों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। जब कारोबार धंस गए हैं, GDP की शरह तक 0 पर ही समझें आप, अब फिर आप कहते हैं कि शरह सूद में 2% कमी, ये कोई ताजरों के लिए रियायत नहीं है, ये एक मजाक है। अतीक मीर बोले, कारोबार को इस्तेहकाम देने के लिए शरह सूद को सिंगल डिजिट में लाया जाए। ताजिरों को रिलीफ दिए बगैर टैक्स अहदाफ पूरे नहीं हो सकते। कारोबार को इस्तेहकाम देने के लिए लाजिम है कि आप इसे सिंगल डिजिट में लाएं, जो मैं समझता हूं आप नहीं ला सकते। उसके बगैर कारोबार को इस्तेहकाम दिए बगैर, ताजिर बरादरी की मदद किए बगैर, तिजारत को हौसला दिए बगैर आप टैक्स भी नहीं ले सकते। इससे कबल चैम्बर और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने भी शरह सूद में 2% की कमी को नाकाफी करार दिया था। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काविश मेमन, सिटी 21। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सफाई के कामों का आगाज। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के फोकल पर्सन जहीर खान बोले, रबीउल अव्वल के हवाले से इलाकों की मॉनिटरिंग शुरू कर दी। न्यू कराची, लाख्ताबाद, नाज़िमाबाद टाउन में सॉलिड वेस्ट को कारकर्दगी बेहतर करने की ज़रूरत है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखें। सफाई निफ्स ईमान, मगर जिला वस्ती में इसकी सूरत हाल तसल्ली बख्श नहीं। सफाई की सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम के मुकर्रर करदा फोकल पर्सन बराए सफाई सुथराई जहीर अहमद खान मुतहरिक हो गए। बोले, पहले तरजीह जश्न ईद मिलादुन नबी पर साफ सुथरा माहौल फराहम करना है। न्यू कराची टाउन है और नॉर्थ दावत टाउन, उसके अंदर गार्बेज की जो इश्यूज हैं डोर टू डोर, उसके ऊपर वर्किंग नहीं हो रही थी। उसके ऊपर उन्होंने नाराजगी इजहार की डीसी साहब ने। उन्होंने कहा है कि आप इसको फौरी इसको स्टार्ट करें। तो कुछ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग है रबीउ वाले, इसमें एक ग्रुप मैनेज किया है सॉलिड वेस्ट टू कोऑर्डिनेशन एससीज के साथ, जिसके अंदर डीसी साहब खुद भी शामिल है। रोजाना की अपडेट उसमें शामिल हो रही है और जो कंप्लेंट्स आ रही है फिल फॉर हम उसको हल कर रहे हैं। फोकल पर्सन के अमले का कहना है कि नाकिस सफाई की शिकायत नॉर्थ नाज़िमाबाद और न्यू कराची टाउन से मौसूल हुई, जिस पर काम किया जा रहा है। सबसे ज्यादा शिकायतें थी हमारी न्यू कराची टाउन में थी और नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में थी। वहाँ कचरे के मामला जो थे वो उसका काम जो है वो जारी है और जो है साफ सुथराई का काम जारी कर दिया है हमने, और जो है कचरा जो है वो अपने मुकाम पे पहुंचा दिया है और गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर जारी है अभी तक। जहीर अहमद खान का कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हिदायत है कि घरों से कचरे की कलेक्शन का दायरा कार वसी किया जाए। कैमरामैन अजलान चीपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट के बानी मौलाना बशीर फारूकी की मुलाकात। फलाही कामों से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर सिंध कहते हैं फलाही इदारे हुकूमत का दस्तो बाजू हैं। कामरान खान टिसोरी ने मज़ीद कहा कि मुस्तहकीन की मदद, आला तालीम के फ़रोग में सैलानी ट्रस्ट का किरदार काबिल सताइश है। गवर्नर हाउस से फलाही इदारों को हर मुमकिन ताउन जारी रहेगा। मौलाना बशीर फारूकी ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव के तहत IT क्लासेस से नौजवानों का ताबनाक मुस्तकबिल यकीनी है। अब आपको बताएं, दावत इस्लामी की ज़ेर तमाम हर साल की तरह इस साल भी समुद्र में जुलूस मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाकात किया गया, जिसमें कश्तियों पर सवार सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मीर कीरो की रिपोर्ट देखें। केमाड़ी की GT1 से कश्तियों पर जलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला गया। दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के रुकन हाजी फैसल रजा अत्तारी की क़यादत में निकले गए जुलूस में बड़ी तादाद में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की। जुलूस में शरीक दावत इस्लामी के कारकुनों का कहना था कि ये जुलूस हर साल निकलता है। जुलूस मनोड़ा जजीरे
और बाबा भिट से होता हुआ वापस GT पर इख्तिताम पजीर होता है। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह साल से दावत इस्लामी के तहत समंदर में निकलता है। अल्हम्दुलिल्लाह खुशकी में तो मिलाद मुस्तफ़ा मनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी खाली कराची में जुलूस नहीं निकालती, पाकिस्तान में जुलूस नहीं निकालती, अरे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दावत इस्लामी के अजीम शान जुलूस निकलते हैं। सरकार की आमद की खुशी में ला तादाद जो है इस्लामी भाई सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आए हुए हैं, जो इंशाल्लाह यहाँ से कराची जेटी से निकलेंगे और मनौड़ा और ये अपना बाबा भीड़ से होते हुए जो है ना मुख्तलिफ मकामात से होते हुए इंशाल्लाह कश्ती में हमारी ये सरकार की आमद मरहबा की जुलूस जो है इंशाल्लाह वो इस तरह रवा होगा। जुलूस के शुरका ने जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे लगाते हुए 12 रबिउल अव्वल को विलादत बासआदत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जिक्र भी जारी रखा। कैमरामैन काशिफ के साथ मीर केरियो, कराची। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, आज दुनिया भर में यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 15 सितंबर को यौम जमहूरियत करार दिया था। वतन अजीज़ भी पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम के तहत चल रहा है। आपको बताते चलें, आज दुनिया भर में यौम जमहूरियत मनाया जा रहा है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आजिज़ जमाली की इस रिपोर्ट में। यौम जमहूरिया कौमी अहमियत की हामिल का दिन अवाम के इज्तिमाई हुकूक और बुनियादी इंसानी हुकूक को जमहूरी माशरे में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है। पाकिस्तान में जमहूरी पार्लियामानी हुकूक को हमेशा ख़तरात लाहक रहे हैं, लेकिन जमहूरी निज़ाम ने ही हमेशा बुनियादी इंसानी हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत है क्या? अवाम की हुकूमत अवाम के लिए, सिंपल। अवाम की हुकूमत अवाम के वोट से अवाम के लिए। इसका मतलब है कि ये हुकूमत अवाम बनाएगी, इसके नुमाइंदे अवामी होंगे और इसके समरात अवाम को मिलेंगे। जमहूरियत समाजी इंसाफ और समाजी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का नाम है। पाकिस्तान में आइन और जमहूरियत ने ही अवाम की अक्सरियत को समाजी आज़ादियाँ फराहम की। जमहूरी निज़ाम अवाम के वोट से वजूद में आता है, इसलिए जमहूरियत को अवामी निज़ाम कहा जाता है। अभी भी हम समझते हैं कि जितना पार्लियामेंट मजबूत होगी, जितने फैसले पार्लियामेंट करेगी, उसको आप उसी को फॉलो करें। आप कहीं भी लकीर निकाल दें, ठीक है हम जो है बाकी चीज़ों को छोड़ते हैं, इस फलां तारीख कट डेट देते हैं, अब इसके बाद हम शुरू करते हैं, नए सिरे से शुरू करते हैं। लेकिन नए सिरे से शुरू करते हैं तो फिर नए सिरे से बड़ी ईमानदारी के साथ हमको करना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 15 सितंबर को यौम जमहूरियत करार दिया है। यूनान से जमहूरियत का सफ़र शुरू हुआ। 150 से ज़ायद ममालिक ने जमहूरियत के चार्टर पर दस्तखत किए। कैमरामैन शकील खान के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फरीद खान अबड़ू ने अपनी रिहाइशगाह पर कारकुना के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें पार्टी वर्कर्स को इनामात से नवाजा गया। ताहा मलिक की रिपोर्ट देखें। वर्कर्स की खिदमात को सराहने के लिए फरीद अबड़ो का खुशाइंद इकदाम। पार्टी वर्कर्स के दरमियान बाइक्स और सर्टिफिकेट समेत मुख्तलिफ इनामात तकसीम कर दिए। तकरीब में फरीद अबड़ो ने अपने फर्जन मीर उमर अबड़ो के हमरा कनाडा से बजरिया वीडियो लिंक खिताब किया और कहा कि मुल्क से बाहर होते हुए भी सदर आसिफ अली जरदारी की हिदायत पर फाल हैं और अपने वर्कर्स के दरमियान इनामात की तकसीम का मकसद इनकी हौसला अफजाई करना है। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि मैं पाकिस्तान में हूँ या ना हूँ, लेकिन जो टीम अबड़ो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो भी जिम्मेदारी है वो हमने अदा करनी है। और इसके अंदर फ्रंट क्लब ऑफ पाकिस्तान बहुत एक्टिव है, काशिफ भाई भी यहाँ पर मौजूद है। तो हमारी कोशिश ये है कि आने वाले दिनों के अंदर ये प्रोग्राम जो है और ज्यादा बढ़ाए जाए। तकरीब में मौजूद मीर नादिर अबड़ो ने मीडिया से गुफ्तगू में वर्कर्स के एतराफ की तकरीब की और अपने वर्कर्स की खदमात को सराहा। मेरे ख्याल में जो भी सियासतदान हैं वो इस बात को मशअल राह करके चलें, अपने कारकुनों को, अपने अहदेदारों को ऐसे ही जब हिम्मत अफजाई उनकी होगी, उनको शाबाशी मिलेगी, उनको ऐसे ही तोहफे मिलेंगे, सर्टिफिकेट्स मिलेंगे, तो वो काम तो करते हैं मगर वो दुगना काम करेंगे दिल से। तकरीब के दीगर मेहमानान में काशिफ सुमरो, गाजी सलाउद्दीन, इजाज हसन, इसाक अराइन, राजा सुहेल, साजिद अवान, काशिफ अहमद और दीगर टीम मेंबर पार्टी कारकुन मौजूद थे। कैमरामैन शरियार के साथ ताहा मलिक, सिटी 21। साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इब्राहीम इस्माइल चंडीगढ़ का 127वां यौम पैदाइश
आई चंडीगढ़ पहले वज़ीर आज़म थे जिन्हें पार्लियामेंट की तहरीक अदम एतमाद की वजह से अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ा था। उन्होंने इंतहाई कम मुद्दत के लिए वजारत के फ़राइज़ संभाले। पाकिस्तान के छठे वज़ीर आज़म के ओहदे पर आई चंडीगढ़ ने सिर्फ 55 दिन गुजारे। कराची में साबिक वज़ीर आज़म के नाम से मंसूब आई चंडीगढ़ रोड मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ है। नमरा रियासत की रिपोर्ट देखें। इंतहाई अलील मुद्दत के लिए बनने वाले मुल्क के पहले वजीर आज़म का यौम पैदाइश इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर 15 सितंबर 1897 को अहमदाबाद में पैदा हुए। मुंबई यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम मुकम्मल करने के बाद वकालत के शोबे से अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया। आई चंद्रीगर ने 1936 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की और 1937 में मुंबई असम्बली के रुकन बन गए। इससे कबल क़याम पाकिस्तान के बाद आई चंद्रीगर वज़ारत तिजारत व सनत के ओहदे पर फाइज रहे। इन्होंने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दी थी। वो 1950 में खैबर पख्तूनख्वा और 1951 में सूबे पंजाब के गवर्नर के ओहदे पर भी फाइज रहे। पाकिस्तान बनने से कबल ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की वर्किंग कमेटी के मेंबर थे।